So here today we have started a new chapter, and this is the digestion and absorption chapter from the human physiology portion of class 11. And here I'm directly going into the basics of the chapter. So digestive system, if you need to understand this chapter revolves around 5 points. And what are those 5 points? These are those 5 points. Basically, in the chapter, we will be studying first the alimentary canal, the parts of the alimentary canal one by one. You have made the alimentary canal diagram in your 8, 9 and 10. You know how alimentary canal diagram looks like. Starting from the mouth, you draw stomach, intestine, anus, is not it? So that is the diagram which we are going to follow. One after another organs we will be discussing. While doing that, these 5 systems will get automatically covered. Okay, these 5 systems will get automatically covered in our discussion of the alimentary canal from the top to the bottom. So what are these 5 points? The first one is ingestion, that is how you eat food. What are the organs which helps you in ingesting the food? Digestion, what are the organs which gives the necessary enzyme to favor your digestion? What are those organs? Okay, and what are the secretions, how digestion occurs? This is what we need to discuss in the second part. Third part, those digested products inside your stomach or intestine, how they are going to get absorbed and how they are going to come into your blood, that is absorption. Assimilation is the absorbed food which your intestinal cells, the villi, brush border, columnar cells, how these cells absorb the nutrients from the lumen of your gut and how these nutrients came to your blood, that is absorption. So after absorption, the nutrients which are already in your blood, the cells will use those nutrition, है ना? हम लोग क्यों न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? Why we are eating, why we are digesting that food, and then why we are absorbing that food? We are absorbing that food so that the food can come into our blood, and then those food can be used, can be consumed, can be broken down by whom? By our cells. So this utilization of absorbed nutrients by our cells is called as what? Assimilation. Okay. And alimentary canal में जो undigested unabsorbed food रह जाएगा, वो undigested unabsorbed food cannot stay in our alimentary canal, is not it? It has to go out. So this is called defecation or egestion, that is removal of undigested and unabsorbed food from the lumen of the alimentary canal. This process is called egestion, माने पोटी करना, ठीक है? Now, as I told you, these are the 5 points of the chapter which we need to study. So these 5 points will get automatically covered as we go down through the parts of the alimentary canal. So if we discuss the parts of alimentary canal, okay, so in the parts of alimentary canal, it will start from our mouth. We know we have a complete digestive system which has a distinct mouth and a distinct anus. So mouth से पहले क्या आता है? Lips. तो lips के बारे में देखो क्या दे दिया है? Muscle of lips are called oris orbicularis. These muscles of our lips which helps us in manipulating the lips. We can manipulate the size and shape of our lips as per our will. So this muscle of the lips is called as oris orbicularis, is the muscle, name of the muscle of the lips. And the skin which is present over the lips, it is called as stratum lucidum. So lips are lined by माने lips का जो skin है, exposed skin, outermost skin, is called as what? Stratum lucidum. Okay, so these are the 2 points that you need to remember. Oral और बकल कैविटी, लिप्स के बाद अंदर हमारा जो इनर पार्ट ऑफ द माउथ है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओरल और बकल कैविटी. सो ओरल और बकल कैविटी के अंदर हम लोग को 2 चीज पढ़ना है. द फर्स्ट वन बीइंग टीथ, द सेकंड वन बीइंग टंग. सो टंग का डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, पहले टीथ खत्म करेंगे, देन वी विल गो टू द टंग. So in teeth, it has been said the human dentition, because we are studying human physiology, we need to discuss everything related to human now. So human dentition is comprised of 4 entities, माने 4 properties that you need to know. The first property being thecodont, second being heterodont, third being bunodont, fourth being diphyodont, and we will have to discuss each of these property one by one. So the first property from the teeth, from the dentition part of the human that we are discussing is heterodont. And I told you already that heterodont is what? It is an exclusive
mammalian character. This is an exclusive mammalian character. In other animals like reptiles, amphibia, fishes, we see homodont dentition. That means all the teeth in their mouth are same in shape, in size, in function. Okay, but in case of mammals, they have a heterodont dentition. That means they will have different sets of teeth. They will have incisors and canines to do incision, or you can say cutting of food. Okay, for cutting of food or for incising the food, you have incisors and canines in the mouth. And for grinding of the food, you have premolars and molars. Okay, so we have various types of teeth in our mouth with different shape, with different function, with different structure. Such type of dentition, when you have different types of teeth in your mouth or different sets of teeth in your mouth, this type of dentition is called as heterodont dentition. Okay, so I hope you know what is incisor, canine, premolar and molar. Okay, or you can also refer to the diagram present in your NCERT. Okay, or you can even see it in Google. If you do not know which are incisors, which are canines का alternate name दो दे दिया है, cuspids and IT, alternate name of canines. Okay, so this is the first property, heterodont. Okay, now remaining three properties we will discuss about that, so make notes. So यहाँ पे बाकी तीन प्रॉपर्टी जो लास्ट वाले में छूट गया वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. द लास्ट वाले में हम लोगों ने हेटेरोडोंट डिस्कस किया. नाउ वी आर डिस्कसिंग थेकोडोंट, बुनोडोंट, डाइफायोडोंट. ओके, ऑल थ्री वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. सो ध्यान से सुनना व्हाट ऑल थ्री मीन्स. Thecodont means when the teeth is embedded inside the socket and possesses well developed roots. This is one teeth and this portion is called the root of teeth. You can call it to be the root of teeth. And what you can see over here, the root of the teeth is embedded. It is घुसा हुआ है, ठीक है, inside what? Inside bony socket. So this is the bony socket in which this teeth is found embedded. Bony socket is not visible because bony socket के ऊपर रहता है हमारा gum, which is also called as gingivae. Another name of gum is called as gingivae. Okay, so hence we cannot see the bony socket, but underneath our gum there is present a bony socket like structure. Socket समझ में आता है ना, जिसमें हम लोग ऐसे चार्जर डालते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट, जैसे सॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर है. उस सॉकेट में इस तरीके का एक डिप्रेशन भी बना हुआ है, and in that depression our teeth fits in. This type of teeth, okay, which fits inside the bony socket, will have more firmness, will have more strength, more rigidity. Okay, and it will also break. या उसका chance of breaking is also very less. Okay, hence thecodont जो है वो well developed roots है, and thecodont type of dentition higher organisms में पाया जाता है. For example, crocodile में पाया जाएगा, mammals में पाया जाएगा. Okay, so like that. Next is bunodont. Bunodont में क्या बोला जा रहा है? Small, blunt and rounded cusps. That means, example, premolars and molars of human. Of human लिखना जरूरी है. Premolars and molars of human. For example, our premolars and molars. Okay, we know what is premolars and molars. ये जो बड़ा बड़ा टीथ है जिसके मदद से हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, थोड़ा देर पहले मैंने लिखा है. तो वो जो premolars and molars है, if you look at this teeth from the anterior point of view, है ना, ऊपर से अगर देखो तो क्या देखोगे? अगर हम लोग lateral view LV, lateral view में अगर हम लोग एक प्रीमोलर को देखें तो एक प्रीमोलर बेसिकली कैसा फील होता है? ऐसा दिखेगा प्रीमोलर, है ना, ऐसा दिखेगा, ठीक है. कैनाइन के बाद जो है प्रीमोलर वो ऐसा दिखेगा. लेकिन अगर इस टीथ को हम लोग ऊपर से देखें, यहाँ से ऐसे ऊपर से अगर देखें, माने एंटेरियर व्यू में अगर देखें, AN व्यू, तो एंटेरियर व्यू में ये दांत हम लोग को कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नहीं? ऐसा जिसका बीच में एक डिप्रेशन है ना. टंग से यू कैन फील इट. फ्रॉम द एंटेरियर पॉइंट ऑफ व्यू वी सी अ डिप्रेशन प्रेजेंट इन द एट द सेंटर ऑफ द टीथ फ्रॉम द एंटेरियर पॉइंट ऑफ व्यू. दिस is called as rounded cusp. This is called as rounded cusp. And if you are getting me what is the rounded cusp, you will know that this rounded cusp is not present only in our premolar but it is also present in our molars as well. माने जितना भी ग्राइंडिंग टीथ है, सब ग्राइंडिंग टीथ में ये राउंडेड कास्प का होना इज इम्पोर्टेंट. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज दिस राउंडेड कास्प
will provide an uneven surface which is a good character for grinding purpose. For example, हमारे घर में आजकल तो ग्राइंडर आ गया है. आई डोंट नो अगर तुम लोग कभी ये देखा है कि नहीं. ग्राइंडर मशीन आने से पहले देयर यूज्ड टू बी क्या बोलते हैं इसको, एक स्टोन का एक बोर्ड के जैसा होता था, और उस स्टोन के बोर्ड में सारा मसाला देके फिर उसको ऐसे ऐसे करके, एक और स्टोन का ऐसे होता था, उसको ऐसे 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 करके उसको पीसते थे, है ना, तब जाके मसाला ग्राइंड होता था. लाइक दिस इज द स्टोन प्लेट एंड दिस इज अनदर स्टोन हैंडल के जैसा, बार के जैसा, और इसको ऐसे 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 करके, ठीक है, मसाला बनाया जाता था. तो ये जो स्टोन का प्लेट है, ये स्टोन के प्लेट में अगर ध्यान से देखा है तो क्या प्रेजेंट है, डॉट 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 डॉट, डिप्रेशन 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 प्रेजेंट है कि नहीं. क्यों? बिकॉज इसके सरफेस को अनइवन बनाया जा रहा है. व्हेन द सरफेस इज अनइवन देयर विल बी मोर फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन विल हेल्प इन ग्राइंडिंग, है ना. इफ द सरफेस इज फ्लैट इट विल बी ट्रबलसम टू ग्राइंड. Hence, because premolar and molars are our grinding teeth, hence in this grinding teeth the Bunodon type of dentition is very important. That depression present at the center from the anterior portion is very important. That will help in making an uneven surface, and that uneven surface will help us in mastication or grinding, whatever you say. Okay, so I hope you understood both these 2 points. Moving on to the next one, which is called as diphyodont. Diphyodont का मतलब है human beings we have 2 sets of teeth. There are also some animal which have polyphyodont dentition. For example, crocodile. In crocodile, their teeth can get regenerate up to 50 to like 50 times plus. 50 times plus उनका माउथ में टीथ रीजेनरेट हो सकता है. अगर कोई एक टीथ 50 बार गिर जाता है, 50 बार गिर के भी वो उठ जाएगा. Like that, polyphyodont dentition. Okay. But we human, we have diphyodont dentition. Diphyodont dentition means we have 2 sets of teeth in our entire lifetime. The first set is called as temporary set, which is also called as milk or deciduous teeth. It comes when we are around 6 months, 1 year, and it lasts in our mouth till the 6 years of age. And then it is replaced by the permanent set of teeth. Okay? So that is why एक बार आएगा, आके 6 साल की उम्र में गिर जाएगा, गिर के एक बार फिर आएगा, और ये जो आएगा ये पूरा लाइफ टाइम हमारा चलेगा, एंड एकदम ओल्ड एज में ये भी चला जाएगा. ठीक है. सो दिस इज, आई होप यू अंडरस्टैंड द टेम्पोररी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ. नाउ दिस diphyodont character, that the teeth will come once, it will fall, and then again it will come. This character, this diphyodont character is not followed by some of our teeth. What are those teeth? The premolars, all the premolars, चाहे वो अपर पोर्शन का हो, लोअर पोर्शन का हो, all the premolars in our mouth, they are monophyodont. They will come only once in our lifetime. Okay, and the last molar, ठीक है, ये जो last molar है, this last molar comes when we are around 20 years of age. उसके आगे आता ही नहीं है. And premolars comes once, it comes nearby when that milk teeth sheds, है ना, तब जाके premolar आता है और रह जाता है. ठीक है. तो last molar जो है, this last molar will come when we are around 20 years of age. Okay, so these are the teeth which are exception. That means they are monophyodont because they come only once, and if they fall they will not come again. Okay, so they are monophyodont, and other than this remaining all the teeth, that is 2 molars, है ना, of each side, 2 molars of each side, all canines, all incisors, they are diphyodont, but these are monophyodont. They will come only once in our mouth. If they fall, they won't come back. Other than them, all other incisor, canines, okay, the 2 molars on each side, okay, these are diphyodont. They are monophyodont. Okay, so I hope you understood what is diphyodont, what is monophyodont, and these are the characters of the dentition of the teeth of human being. Now we will discuss about the dentition formula followed by the structure of the teeth. Okay, make notes. So यहाँ पे हम लोगों ने पहले 2 चीज का यहाँ पे डिस्कशन हुआ है. The first part, okay, that I have written is about the dental formula. Okay, and dental formula is something जिसके ऊपर बहुत questions आता है. So this dental formula, okay, how you are going to find this dental formula? You need to consider these 2 columns as your upper jaw and lower jaw. This is a column for your upper jaw, and this is the column for your
लोअर जो. ओके, सो अपर जो का फॉर्मूला यू विल राइट ऊपर, लोअर जो का फॉर्मूला यू विल राइट नीचे. दिस अपर जो एंड लोअर जो का जो फॉर्मूला लिखना है उसको हम लोग एक पैटर्न में लिखेंगे. क्या होगा वो पैटर्न? द पैटर्न विल बी दिस: इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. दैट मीन्स इंसिसर का रीडिंग सबसे पहले बैठेगा, कैनाइन का रीडिंग सेकंड में, प्रीमोलर का थर्ड में, मोलर का फोर्थ में या लास्ट में. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर फाइंडिंग अ डेंटिशन फॉर्मूला, so you will have to find it in this way, that you will have to arrange the formula in a pattern of I, C, P, M, M, incisor, canine, premolar, molar, upper जो का ऊपर, lower जो का नीचे. And in order to make the calculation easy, you are always going to consider the half part of your mouth. Okay, you need to consider that you are cleaving or cutting your mouth at the half, and then you are taking the reading of this half into 2 लगा हुआ है, तो इस हाफ का ऑलरेडी काउंट हो जाएगा. बिकॉज वी नो इस हाफ में जितना टीथ होगा, एग्जैक्ट टीथ विल बी प्रेजेंट ऑन दिस हाफ एज वेल. सो इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर जो इजियर, व्हाट डू? वी राइट अपर जो का फॉर्मूला ऊपर, लोअर जो का नीचे, इन अ पैटर्न ऑफ I, C, P, M, M, and we put into 2. in order to make the calculation easy, we need to count only the half part of the mouth and remaining into 2 अपना काम कर देगा. ठीक है, so if I count the half part of my mouth, then how many incisors do I have? देखो, ये एक, ये दो. ठीक है, तो इस तरीके से इंसिसर हुआ 2, कैनाइन यहाँ पे है 1, तो 1 बिठाया. प्रीमोलर यहाँ पे अपर जो में 2 है, 2 बिठाया. मोलर्स 3 है, मेरा 3 है बिकॉज मैं 20 पार कर गया आज से 6 साल पहले. हाँ, 6 साल पहले मैं 20 पार कर गया, इसलिए मेरा आ गया है लास्ट मोलर. ओके, नीचे में भी अगर मैं काउंट करूं सेम, 2 इंसिसर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर. ठीक है, इनटू 2, तो ये साइड का ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर मैं प्लस करूं, 2 + 1 + 2 + 3, 8, नीचे 8 इंटू 2, 16. अपर जो में 16 टीथ है, लोअर जो में 16 टीथ है. टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 32. ठीक है, तो मैं भी एडल्ट हूं पर दिल तो बच्चा है जी, जो भी है. ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम लोगों को आगे भी बहुत सारा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. जैसे कि अभी अगर तुम लोग को यहाँ पे बोला जाए कि व्हाट इज द डेंटिशन फॉर्मूला फॉर अ टीनेजर, तो टीनेजर में देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया है. टीनेजर में क्या होगा? द लास्ट मोलर वोंट कम. मैंने मोनोफाइडोंट में बोला है लास्ट मोलर जो है वो 20 इयर्स के बाद आता है. तब तुम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 1 2 2, क्योंकि लास्ट मोलर नहीं आया है. समझ में आया ना? काउंट करके बिठाना है. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड. इस तरीके से बिठाना होगा. ठीक है, तो डेंटिशन फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है और डेंटिशन फॉर्मूला को अच्छे से करना पड़ेगा. एंड द टेक्निक टू डू इट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो एनी क्वेश्चन दैट कम्स, इफ दे आस्क यू राइट द डेंटिशन फॉर्मूला ऑफ डाइफायोडोंट डेंटिशन, सिर्फ उन्हीं टीथ के बारे में लिखना है जो डाइफायोडोंट है. तो कौन डाइफायोडोंट नहीं है ये हम लोग को पता है. प्रीमोलर नहीं है, लास्ट मोलर नहीं है ना, बाकी सब तो डाइफायोडोंट है. तो डाइफायोडोंट का फॉर्मूला में क्या बिठाओगे? इन ऑल इंसिसर्स 2, ऑल कैनाइन्स. हम लोग सिर्फ एक ही साइड का डिस्कस कर रहे हैं. ऑल कैनाइन में बोल जरूर रहा हूं, लेकिन हम लोग माउथ का हाफ एंड इस साइड का डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है ना, तो अपर जो का डिस्कशन करना है, सिर्फ पैटर्न सेम रहेगा. अपर जो में हाउ मेनी इंसिसर्स आर देयर व्हिच आर डाइफायोडोंट, बोथ 2 2. हाउ मेनी कैनाइन्स आर देयर ऑन दिस साइड व्हिच आर डाइफायोडोंट. अपर जो का 1 कैनाइन 1. ठीक है, प्रीमोलर क्या है? डाइफायोडोंट है क्या? नहीं है, मोनोफायोडोंट है. तो प्रीमोलर में क्या बिठाएंगे? 0. मोलर क्या है? डाइफायोडोंट है कि नहीं? हाँ, पहला 2 मोलर डाइफायोडोंट है, तो क्या बिठाएंगे? 2 1 0 2 by 2 1 0 2 into 2. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ दिस डेंटिशन फॉर्मूला इज डन. ठीक है, मोनोफायोडोंट अगर बोलेंगे तो हम लोग का आएगा 0 0 2 1 by 0 0 2 1, बिकॉज वी नो दैट मोनोफायोडोंट डेंटिशन, कौन कौन सा दांत मोनोफायोडोंट है? इंसिसर्स नहीं है क्योंकि वो डाइफायोडोंट है, 0. कैनाइन नहीं है, डाइफायोडोंट है, 0. प्रीमोलर जरूर है, 2. ठीक है ना, मोलर्स पहला 2 नहीं है, लास्ट वाला है 1. तो 0 0 2 1 by 0 0 2 1 into 2 आ जाएगा तुम्हारा मोनोफायोडोंट का डेंटिशन फॉर्मूला. ठीक है, एक डाउट क्लास में हम लोगों ने ये किया भी था पहले, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिख रहा हूँ. जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वी कम टू द structure of the teeth, how teeth looks, that is what we are discussing here. So this is our teeth.
टीथ इज एम्बेडेड इनसाइड द सॉकेट, थेकोडोन डेंटिशन. दिस इज द बोनी सॉकेट जहां पे ये टीथ घुसा हुआ है. बोनी सॉकेट इस टीथ को एक ग्रिप देगा, लेकिन उसके साथ साथ बोनी सॉकेट के साथ साथ देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट ग्रिप टू द टीथ. एंड व्हाट इज दैट अदर थिंग? दिस रीजन सिर्फ यहां से यहां, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ यहां से यहां, ये जो रीजन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इस रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? सीमेंटम रीजन. एंड इस रीजन में पाया जाता है सम एक्स्ट्रा बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर, सम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाला कोलाजन फाइबर, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? शार्पेस फाइबर बुलाते हैं. और ये शार्पेस फाइबर क्या करेगा? टीथ को बोनी सॉकेट में पकड़ के रखने में मदद करेगा. तो शार्पेस फाइबर विल हेल्प इन एक्स्ट्रा पैकिंग, इन प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द टीथ एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट. ओके, बोनी सॉकेट के ऊपर गम जिंजीवेल लिख दिया है. टीथ में दो पार्ट है, एक पार्ट है ये तो सीमेंटम रीजन है. ये जो पार्ट है ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डेंटाइन. एंड डेंटाइन के ऊपर आता है एक व्हाइट पोर्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एनामेल. एनामेल इज कंसीडर्ड टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, इवन हार्डर देन बोन. एंड ये जो एनामेल है, दिस एनामेल इज आवर च्यूइंग सरफेस, ठीक है. हमारा जो टीथ का जो च्यूइंग सरफेस है, या हमारा टीथ का वो पोर्शन जो हम लोग को च्यू करने में, या फिर हमारा कैनाइंस इंसिसर जो इंसिशन करने में हम लोग को मदद करता है, वो है एनामेल. ओके, एंड एनामेल बीइंग द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड. ओके, सो इट फॉर्म्स द च्यूइंग सरफेस, इट असिस्ट इन मेस्टिकेशन. तो एनामेल ऐसे करके एक टोपी के जैसा आता है डेंटाइन के ऊपर, ठीक है. तो डेंटाइन इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. डेंटाइन के अंदर यू कैन सी देयर कम्स इस तरीके का एक रूट, एक कैनल के जैसा स्ट्रक्चर है, जो देखो शार्पेस फाइबर से होते हुए, डेंटाइन से होते हुए अंदर घुस रहा है. तो ये जो डेंटाइन में जो होल है, जिसके थ्रू ये जो कैनल है वो अंदर घुस रहा है, दिस होल इज कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन. याद रखना, द होल इज कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन थ्रू विच द कैनल एंटर्स. ये जो कैनल अंदर घुसा है, ये देखो डेंटाइन में रन कर रहा है. दिस इज डेंटाइन, ये डेंटाइन है, ठीक है, ये डेंटाइन है, डेंटाइन के अंदर से रन कर रहा है ऐसे करके. तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी. एंड दिस पल्प कैविटी कैरीज ब्लड वेसल नर्व्स पासेस थ्रू इट, ठीक है. तो ब्लड वेसल नर्व जो है वो इस पल्प कैविटी के थ्रू डेंटाइन के अंदर से होते हुए पास करेगा. एंड हाउ कम दिस पल्प कैविटी एंटर्ड इनसाइड द डेंटाइन? इट एंटर्ड इनसाइड द डेंटाइन वाया अ पोर, वाया अ होल व्हिच इज कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन, ठीक है. तो ये भी डायग्राम करने का है कॉपी में, नोट में, ठीक है. अच्छा, तो इसका नोट बना लो. अब चलते हैं, टीथ हो गया, अब चलते हैं टंग में. तो यहाँ पे अभी हम लोग एज वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. सो टॉप में हम लोग को बकल कैविटी या ओरल कैविटी मिला. एंड वी नो दैट बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स मिलेगा. लेकिन बिफोर वी गो टू द फेरिंग्स, बकल एंड ओरल कैविटी में देयर आर टू थिंग्स which we need to discuss. First was teeth, which we have discussed. The second is tongue. Okay, so here tongue के बारे में ही लिखा है. It is a voluntary. Tongue is voluntary. It is under our control. Is not it? And for a organ, like tongue is a organ. For this organ, tongue, if it has to be voluntary, it have to be a skeletal muscle. And skeletal muscle should be connected with some kind of bone. We have already discussed about this. So at the base of our skull, here, at this region, we have a U-shaped bone. U-shaped bone is present over here, not this jawline bone. There is another bone, small bone, U-shaped bone, which is present here, right here. Okay, this bone is called as hyoid bone. And this is a very special kind of bone, because this bone has connection with no other bone. Because in our body, all the bones are connected with the other bone. This is the only bone in our body which is not connected with any other bone of our body. This bone is called as hyoid bone, HYOID, hyoid bone, and with this hyoid bone the tongue is attached. Hence hyoid bone is also called as tongue apparatus. So it is a voluntary, muscular, obviously glandular structure. It will have some glands present. Okay, the tongue, which occupies the floor of the mouth, and it is present at the floor of the mouth. हमारा माउथ का ये क्या होगा? अपर फ्लोर, लोअर फ्लोर. टंग इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ, लोअर फ्लोर ऑफ द माउथ. So the tongue is attached to the floor of the mouth via frenula. अगर आज हम लोग हमारे टंग को ऐसे रिवर्स करें, रिवर्स, और यहाँ पे क्या दिखाई देता है? आईना से देखने से यहाँ पे क्या दिखाई देगा? अगर हम लोग टंग को ऐसे घुमा ले अंदर के तरफ, तो हमारा टंग क्या है? प्री हेंसाइड टंग ना, हम लोग अंदर की तरफ टंग को ले सकते हैं.
तो टंग को अगर हम लोग अंदर के तरफ मोड़ दें तो वी विल सी अ फोल्ड ऑफ स्किन इज प्रेजेंट व्हिच इज कनेक्टिंग द टंग विद द लोअर फ्लोर ऑफ आवर माउथ, है ना। है यहाँ पे टंग के नीचे यहाँ पे एक स्किन के जैसा है जो टंग को कनेक्ट कर रहा है टू द लोअर फ्लोर ऑफ द माउथ, दैट स्किन इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूला। द टंग इज अटैच्ड टू द हायोइड बोन, वो दे दिया है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल, ओके। The inverted V-shaped furrow called sulcus terminalis divides the tongue into two parts, anterior oral part, posterior pharyngeal part. Now, आज अगर मैं आईना को ऐसे लेके अगर मैं अपना टंग को ऐसे करके निकाल दूं, माँ काली टाइप ऐसे करके अगर निकाल दूं, मुझे क्या दिखाई देगा? अंदर मुझे क्या दिखाई, ऐसा दिखाई देगा कि नहीं? देखो ऐसे ये पकड़ लो माउथ, ये मैंने टंग को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज उवुला, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज उवुला। एंड ये जो जगह है, ये ठीक मेरा हाथ कहाँ पे, देखो एक घंटा जैसा, टंग बाहर निकाल देंगे तो अंदर में कैसे पेंडुलम के जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज उवुला, ठीक है ना। और वेलम पैलेटी, ठीक है, अनदर नेम ऑफ उवुला, जो भी है। ये जो जगह है, ये जो जगह है, इस जगह को बोला जा रहा है साल्कस टर्मिनालिस। ये जगह को बोला जा रहा है द वी शेप फरो कॉल्ड एज साल्कस टर्मिनालिस। और ये जो साल्कस टर्मिनालिस है वो बोल रहा है दिस साल्कस टर्मिनालिस इज दैट पार्टीशन व्हिच डिवाइड्स द ओरल कैविटी विद द फेरिंग्स। माने साल्कस टर्मिनालिस के आगे इट इज बकल कैविटी, साल्कस टर्मिनालिस के पीछे इट इज द फेरिंग्स, ठीक है। एंड हमारा जो टांग है वो काफी लंबा है, हमारा टांग वो फेरिंग्स से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि हायोइड बोन इधर है हायोइड बोन, तो यहाँ से टांग अटैच्ड है, तो टांग फेरिंग्स के रीजन से होते हुए आके ओरल रीजन में आता है एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ फ्रेन्यूलम विद द लोअर फ्लोर ऑफ द माउथ। तो टांग जो है इट डज नॉट एंड्स एट आवर ओरल कैविटी, द टांग हैज आल्सो अ रीच इन द फेरिंग्स रीजन, इट गोज बियॉन्ड द sulcus terminalis, hence sulcus terminalis divides the tongue into two parts, that is anterior oral part, the part of the tongue which is present in the oral cavity, anterior oral part, and the part of the tongue which is present beyond the sulcus terminalis, पीछे of the sulcus terminalis is called as posterior pharyngeal part, ठीक है। It possesses three types of papilla, ठीक है। हमारा टंग को जब हम लोग आईना में ऐसे आईना सामने लेके देखेंगे तो we will see there are some dot structures present. These structures are called as papilla, ठीक है। मैं पेपिला पहले भी बोला हूँ, नॉर्मल सरफेस से कोई भी आउटग्रोथ इट इज कंसिडर्ड एज पेपिला। सो इन आवर टंग देयर इज न्यूमेरस सच आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड एज पेपिला। सो पेपिला जनरली होता है 4 टाइप्स, बट ह्यूमन में 3 टाइप्स है, तो मैंने 3 टाइप्स का डिस्कशन किया है। पहला बोला जा रहा है फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला आर कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट, ओके, दे हैव नो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट। पेपिला के अंदर जनरली टेस्ट बर्ड होता है जो हमारा टेस्ट डिटेक्शन करता है, गस्टेटो रिसेप्टर, टेस्ट डिटेक्टिंग रिसेप्टर, तो वो टेस्ट बर्ड इस पेपिला में प्रेजेंट नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड एज कोनिकल पेपिला। एंड दिस पेपिला, द फिलीफॉर्म पेपिला और कोनिकल पेपिला appears as white dots in our mouth। अगर कभी आईना लेके देखोगे तो टांग में जितना भी white dots है, these white dots are what? Conical papilla, okay? The second one is called as filiform papilla. They appear as red dot and they have taste bud present. Circumvallate papilla, they are largest in size, they are spherical or knob-like in structure and they possesses taste bud. इनमें भी taste bud present है, so इन दोनों में taste bud है, इसमें absent है। There is another papilla which is called as foliate, F-O-L-I-A-T-E, foliate papilla, and that is present in herbivores. That is not present in our tongue. It is generally present in the tongues of herbivores. Okay, so this is your discussion of tongue. Now we will move to pharynx, esophagus. Sorry, so make notes. So यहाँ पे हम लोगों ने oral cavity का discussion खत्म किया. Now we are discussing pharynx, esophagus. And today in this video we will also discuss about the stomach. Okay, next video में intestine से शुरू करेंगे. So pharynx जो है it serves as a common passage for food and air. ठीक है, कैसे? देखो डायग्राम में मैंने ट्राई किया है समझाने का. This is your food pipe, this is your windpipe, and they are present together. Is not it? फूड पाइप जो है दैट फूड पाइप में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके का फूड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं. एंड दिस एपिग्लोटिस चेक्स द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप. फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ब्रीदिंग
योर एयर फ्रॉम योर नोज विल गो एंड इट विल गो थ्रू द फेरिंग्स। सी ये है ओपनिंग ऑफ नेसोफेरिंग्स। सो ये जो ऐसे करके जाता है, जाके ये कहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा। ये है नेसोफेरिंग्स का ओपनिंग, ठीक है। माउथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन माउथ हम लोग यहाँ ड्रॉ नहीं करने से भी चलेगा माउथ को, लेकिन तब इमेजिन करना पड़ेगा दैट माउथ यहाँ है। ये मतलब 3D इमेज तो नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू कंसीडर माउथ ये है, ये हाथ माउथ है, और ये माउथ का पीछे का स्ट्रक्चर है, ये जो है फेरिंग्स। ये जो मैंने डॉटेड लाइंस में जो गोल बनाया है दैट इज योर फेरिंग्स। ओके, सो दिस इज योर फेरिंग्स, इसको हम लोग फेरिंग्स बुलाते हैं, ठीक है। और इस फेरिंग्स के ठीक आगे यहाँ पे है माउथ, ऐसे, ठीक है। तो माउथ से जब फूड अंदर जाएगा तो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से फूड पाइप में घुसेगा। सो जब तुम फूड को स्वेलो करते हो तब ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देता है, क्योंकि फूड को तो विंड पाइप में नहीं जाना है। सो एपिग्लोटिस विल क्लोज द विंड पाइप एंड इट विल कीप द फूड पाइप ओपन, सो योर फूड विल एंटर थ्रू द फूड पाइप। ओके, व्हेन यू आर ब्रीदिंग, so your air will basically come from here. If you breathe through the nose, the air will go and it will come through this nasopharynx. At that time epiglottis will close the food pipe, because air को food pipe में जाके क्या करना है, so air will directly go into the wind pipe. तो wind pipe का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो है ब्रीदिंग। इस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्री कैनल पढ़ रहे हैं, तो wind pipe को भूल जाओ, नाउ फोकस ऑन फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है, ठीक है, एंड फेरिंग्स को कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड क्यों बोला गया, समझ में आया। जब हम लोग स्वेलो करेंगे इट विल हैव टू गो थ्रू द फेरिंग्स, जब हम लोग सांस लेंगे इट विल हैव टू गो थ्रू द फेरिंग्स। फूड पाइप ये है, ठीक है, जो आके जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। ओसोफेगस में देयर आर टू स्फिंक्टर प्रेजेंट, एक एंटेरियर एक पोस्टेरियर। एंटेरियर पार्ट में जो है उसको क्या बुला रहे हैं, क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर, एंड पोस्टेरियर पार्ट राइट बिफोर ओपनिंग इनटू द स्टोमक, ठीक है ना। अभी स्टोमक हम लोग जब पढ़ेंगे तो स्टोमक में हम लोग को ऐसा मिलेगा, स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड कार्डियक, सी, ओके। ठीक है, सो सॉरी, दिस रीजन इज कॉल्ड एज कार्डियक, ओके। दिस रीजन इज कॉल्ड एज पाइलोरिक, दिस रीजन इज कॉल्ड एज बॉडी, ओके। एंड ये जो ऊपर का रीजन है, इस ऊपर के रीजन को हम लोग बुलाते हैं फंडस, एफ, फंडस, ठीक है। सो फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, तो देयर आर 4 रीजन्स इन द स्टोमक। सो बेसिकली ये जो रीजन है ओसोफेगस का, इट इज ओपनिंग इनटू द कार्डियक रीजन, हेंस दिस रीजन द इंटरमीडिएट रीजन ऑफ ओसोफेगस, और यू कैन से द रीजन ऑफ द ओसोफेगस व्हिच ओपन्स इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक, क्योंकि हमको पता है ओसोफेगस से कोई भी चीज आके स्टोमक में अगर गिरेगा वो बेसिकली कार्डियक रीजन में गिरेगा। इसलिए ये जो रीजन है ऑफ ओसोफेगस व्हिच इज ओपनिंग इनटू द स्टोमक, दिस रीजन इज कॉल्ड एज कार्डियक ओरिफिस, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज कार्डियक ओरिफिस। दिस रीजन ऑफ द ओसोफेगस व्हिच इज ओपनिंग इनटू द कार्डियक रीजन ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड एज कार्डियक ओरिफिस। और ये कार्डियक ओरिफिस रीजन में एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। सो ये कार्डियक नाम कहां से आया, आई होप यू अंडरस्टैंड, because this sphincter is regulating the opening of the esophagus into the cardiac region of stomach, hence cardiac sphincter। जगह का नाम कार्डियक ओरिफिस क्यों, because this is the portion of the esophagus which is opening into the cardiac region of the stomach, cardiac orifice। इस स्फिंक्टर को हम लोग एक और नाम से भी बुलाते हैं, गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर। काय को, क्योंकि स्टोमक का एक और नाम है गैस्टर, GASTER, एंड ये स्फिंक्टर गैस्टर एंड ओसोफेगस के बीच में खड़ा है, इसलिए गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर भी हम लोग इसको बुलाते हैं। तो यहाँ पे वही ओसोफेगस, कार्टिलेजिनस फ्लैप called epiglottis prevents the entry of food into the food pipe. Esophagus is 23 to 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये सब दे दिया है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ओसोफेगस इज लाइंड इंटरनली, ओसोफेगस इज लाइंड इंटरनली बाय बाय एन यूनिसेलुलर ग्लैंड। और ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है म्यूकस नेक सेल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज म्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये सेल प्रेजेंट है ओसोफेगस के इनर लाइनिंग में, माने यहाँ ऐसे ऐसे करके यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट होगा ओसोफेगस के अंदर के लाइनिंग में, एंड दोज यूनिसेलुलर ग्लैंड आर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल कॉल्ड एज म्यूकस नेक सेल और म्यूकोसाइट्स, ठीक है। सो आई होप
ओसोफेगस का ये समझ में आया है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टोमक. ठीक है, स्टोमक का डिस्कशन आज कर लेंगे सो दैट नेक्स्ट हम लोग इंटेस्टाइन से शुरू करें. ठीक है, ऑलरेडी 30 मिनट्स प्लस हो गया होगा. इसका नोट बना लो, डायग्राम अच्छे से करो. अभी स्टोमक क्या है देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग स्टोमक स्टार्ट कर रहे हैं. तो स्टोमक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऐसी माने अकॉर्डिंग नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड एज, मैं ऑल्सो कॉल्ड ऐसे लिखता हूँ, गेस्टर और वेंट्रिकुलस. दीज आर ऑल्टरनेट नेम ऑफ स्टोमक. स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, सो आवर कैविटी, बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, ये जो हमारा चेस्ट का रीजन है दिस इज कॉल्ड एज थोरासिक कैविटी, एंड जो पेट का रीजन है दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी. सो स्टोमक इज लोकेटेड समवेयर हियर. ठीक है, दैट इज द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है. इट हैज 4 पार्ट्स, फंडिक, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक. पहले 3 पार्ट्स था, लेटेस्ट एनसीईआरटी को रिवाइज करके जब बनाया गया तो 4 पार्ट्स बोला गया. इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का जो अंदर का लाइनिंग है, इट विल हैव सम इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट, एंड दिस इरेगुलर फोल्ड्स आर कॉल्ड एज रागी. RUGAE is the name of the fold which is present inside the stomach. ठीक है, अच्छा, ये जो तुम लोग 3 रीजन देख रहे हो या 4 रीजन देख रहे हो, 4 रीजन का ये पाइलोरिक है. ये पाइलोरिक रीजन जो है, दिस पाइलोरिक रीजन विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. तो कल हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन से पकड़ेंगे. दिस पाइलोरिक रीजन विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे एक कार्डियक स्फिंक्टर है, उसी तरीके से पाइलोरिक रीजन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, और इस स्फिंक्टर को हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर ही बुलाते हैं. और ठीक है, इसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बुलाते हैं, व्हिच अलाउज द एसिडिक फूड ऑफ द स्टोमक. एसिडिक फूड मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम लोग जो फूड खाते हैं वो नॉर्मल खाते हैं, लेकिन वो फूड जब स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में HCl present है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and that acid when it mixes with the food we call that food acidic chyme, CHYME. So stomach में food stays for 4 to 5 hours, and during that 4 to 5 hours the acid is mixed, some enzymes are mixed with the food by the stomach by doing a movement called churning movement, जो हम लोग को फील नहीं होता है. काहे को फील नहीं होता है? क्योंकि स्टोमक का जो मसल है वो मसल क्या है? स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल इज इनवॉल्यूंटरी. तो समझ में तो नहीं आएगा पेट का चार्निंग मूवमेंट, लेकिन जब जब हम लोग खाना खाएंगे, खाना स्टोमक में जाएगा, एंड इन द स्टोमक देयर इज प्रेजेंट सम ग्लैंड्स व्हिच विल सीक्रेट HCl एंड सम एंजाइम्स. दोस HCl एंड एंजाइम्स आर मिक्स्ड इनसाइड द स्टोमक by a movement which is generated by the stomach itself, and that movement is called churning movement, and that movement is caused by the involuntary smooth muscles of the stomach. So जब ये churning movement होगा एंड स्टोमक के अंदर एंजाइम्स एंड HCl के साथ फूड को मिक्स किया जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा स्टोमक के अंदर, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एसिडिक काइम. वो है उल्टी. कभी उल्टी होता है तो देखा है कि नहीं? उल्टी कैसा होता है? उल्टी कैसा होता है? टेंगा होता है, टेंगा एसिड टेंगा. तो उल्टी होने से समझ में आया ना? तो उल्टी का जो सामान निकलता है पेट के अंदर से, वैसा पेट के अंदर बनता है एवरी टाइम वी ईट फूड, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक काइम. दैट उल्टी बोमी, उसको हम लोग काइम बुलाते हैं, काइम. दैट काइम विल पास फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर. नाउ ये सब ठीक है. स्टोमक के अंदर कुछ फोल्ड्स है जिसका नाम रगी है, वो ठीक है, इंफॉर्मेशनल पॉइंट. नाउ ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये जो रीजन्स है, इन रीजन्स में all 4 region possesses unicellular gland, और ये यूनिसेलुलर ग्लैंड वही है जो ओसोफेगस में था, दैट इज म्यूकस नेक सेल. लेकिन जो हमारा फंडस रीजन है, ये फंडस रीजन एक स्पेशल रीजन है. काहे को? क्योंकि फंडस रीजन में यूनिसेलुलर ग्लैंड के साथ फंडस रीजन ऑल्सो बियर्स, ऑल्सो लिखा है इसलिए क्योंकि फंडस रीजन में म्यूकस नेक सेल भी होगा, ऑल्सो बियर्स आ मल्टीसेलुलर ग्लैंड. मल्टीसेलुलर ग्लैंड का डिस्कशन ऑलरेडी टिश्यू चैप्टर में हो चुका है. मल्टीसेलुलर ग्लैंड जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? जिसको हम लोग बुलाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है कि नहीं? और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये सिर्फ फंडस रीजन में ही पाया जाता है, नॉट इन अदर 3 रीजन्स. अदर 3 रीजन्स में सिर्फ यूनिसेलुलर ग्लैंड पाया जाएगा, बट फंडस रीजन में पाया जाएगा यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर ग्लैंड जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड. एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज नोन टू बियर सेवरल टाइप्स ऑफ सेल. तो ये जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड है इसमें क्या क्या सेल प्रेजेंट है?
सबसे पहला मल्टीसेलुलर ग्लैंड में प्रेजेंट है म्यूकस नेक सेल, यूनिसेलुलर लेवल में भी प्रेजेंट होगा और मल्टीसेलुलर ग्लैंड के अंदर भी प्रेजेंट होगा म्यूकस नेक सेल। क्या सीक्रेट करता है म्यूकस नेक सेल? म्यूकस, दैट वी नो। ओके, सेकेंड सेल जिसका नाम है पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल। ये पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल क्या करता है? ये रिलीज करता है दो चीज, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक और चीज रिलीज करता है जिसका नाम है कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये कैसेल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF इसका रोल है, अभी बस बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एंड विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसका जरूरत है आरबीसी फॉर्मेशन में। इफ यू डू नॉट हैव sufficient amount of vitamin B12 in your body, or if you have a deficiency of vitamin B12, then it might lead to anemia. Anemia is the lack of RBC in our blood. So for the maturation of RBC, for the formation of RBC, you need a vitamin which is called as vitamin B12. And whenever we eat any kind of vitamin B12 in our diet, उस vitamin B12 का absorption कराने में मदद करता है ये कैसेल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसे मदद करता है लास्ट में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो। तीसरा जो सेल है उसको हम लोग बुलाते हैं क्या? इसको हम लोग बुलाते हैं पेप्टिक